Good afternoon, students. Now, the topic of today's discussion is Introduction to Glycosides in Unit 2. Now, continuing with the topic, first of all, you should need to know about what is the definition of glycosides. What is the definition of glycoside is? First of all, organic natural compounds which are present in lot of plants and some animals, and these compounds upon hydrolysis give one or more sugar moieties, like one is glycon moiety and second is non-sugar or aglycon moiety. Now you should know glycoside is equal to glycon plus aglycon, that is sugar group plus non-sugar group. Glycon and aglycon are linked by a glycosidic linkage. That's why they are known as glycosides. Now, continuing with the topic. Glycosidic linkage is formed between OH group of sugar and H group of non-sugar moiety or other sugar with loss of water molecule. Like you can see the glycosidic bond, that means glycoside is equal to glycon and O group, that is oxygen group, और A glycon moiety. ठीक है, ये आप देख रहे हैं एग्जाम्पल माल्टोज का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, दैट इज अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ठीक है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मतलब O लिंकेज आपको दिखाई दे रही है बीच में, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज दो मोइटीज़ के बीच में, मतलब ये आपका क्या है, शुगर और नॉन शुगर मोइटी के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है. ठीक है, नाउ कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक. Sugar in glycosides is mostly beta-D-glucose, but other sugars like galactose, mannose, rhamnose, digitoxose can also be present. Glycoside can be alpha or beta, but plants contains only beta-glycosides. Therapeutic effect of glycoside is only due to the A-glycon part, मीन्स जो A-glycon part प्रेजेंट होता है हमारा ग्लाइकोसाइड में, मतलब नॉन शुगर पार्ट, उसी की वजह से हमारा ग्लाइकोसाइडिक इफेक्ट होता है. एंड शुगर मोइटी फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड. जो शुगर मोइटीज़ होते हैं या फिर ग्लाइकॉन पोर्शन होते हैं ग्लाइकोसाइड के, वो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड में हेल्प करते हैं एंड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए ग्लाइकॉन टू द साइट ऑफ एक्शन. सो ग्लाइकोसाइड्स आर हाइड्रोलाइज टू गिव ए ग्लाइकॉन पार्ट ऑफ एक्शन. जो ग्लाइकोसाइड हैं उनको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब अंडर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस दे गिव ए ग्लाइकॉन पार्ट फॉर द एक्शन, पर्टिकुलर एक्शन ऑफ glycosidic drug. Glycosides have therapeutic effect in human and animals also, as they are used in traditional and modern medicines as cardiotonic, purgative, analgesic, antirheumatic, demulcent and many other uses. Means these are the activities where glycosides are used as traditional and modern medicines too. What are the physicochemical properties of glycosides? इसमें आप देखेंगे they are colorless, solid, amorphous, non-volatile, that is flavonoid, that is yellow, anthraquinone red और orange. ठीक है, ये कलर्स हैं आपके ग्लाइकोसाइडिक ड्रग्स के. they give पॉजिटिव रिएक्शन विद मॉलिश एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट. हमारे टेस्ट होते हैं पर्टिकुलर, एक टेस्ट होते हैं जिससे हम चेक करते हैं कि ये आपका ग्लाइकोसाइडिक ड्रग है या नहीं है. ठीक है, they are water soluble compounds and they are insoluble in organic solvents. Most of them have bitter taste except the glycosidic drug populin, glycyrrhizin and steviocyde. These are the chemical constituents present in various drugs. Now they are odorless except saponin. odorless होते हैं सेपोनिन को छोड़ के, बिकॉज सेपोनिन में ओडर होती है, दैट इज ग्लाइसराइजिन. व्हेन अ ग्लाइकोसाइड हैज़ अ लॉट ऑफ शुगर्स इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज. जब ग्लाइकोसाइड में बहुत सारे शुगर्स प्रेजेंट होते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली हाइड्रोलाइज बाय यूजिंग मिनरल एसिड्स एंड टेम्परेचर और बाय यूजिंग एंजाइम्स. जो ग्लाइकोसाइड्स हैं इनका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ मिनरल एसिड्स, temperature by increasing or decreasing the temperature of the particular drug or by using enzymes also. Glycosides are water soluble compounds and they are insoluble in the organic solvents. The glycon part are water soluble
and it is insoluble in the organic solvent, and the aglycon part, that is non-sugar part, are water insoluble and soluble in organic solvent. This is the basic difference between glycon part and aglycon part of glycoside. Now some glycosides soluble in alcohol. Now role of glycosides in the plants: they convert the toxic materials to non or less toxic compounds. They transfer water insoluble substances by using monosaccharide sugar. ठीक है, it is this glycosides are the source of energy, that is they are also known as sugar reservoir also. They store harmful products such as phenol. They help in regulation for the certain functions of the like growth of the plant and various other functions. Some have beautiful colors also. Some glycosides have antibacterial activity, so they protect the plants from bacteria and diseases. क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब आपको बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है. उस क्लासिफिकेशन में आपने देखना है किस किस बेस पे क्लासिफिकेशन है. तो फर्स्ट बेसिस है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज बिटवीन ग्लाइकॉन एंड एग्लाइकॉन पार्ट. ठीक है, तो कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज बिटवीन ग्लाइकॉन एंड एग्लाइकॉन पार्ट. उसमें पहला है आपका ओ ग्लाइकोसाइड्स. In these glycosides, the sugar part is linked with the oxygen atom of aglycon part. ठीक है, जो sugar part है वो link होगा आपका aglycon part से with the oxygen linkage. Now S glycosides, in these glycosides the sugar attached to a sulfur atom of aglycon, for example synigrin. Now N glycosides, in these glycosides the sugar linked with nitrogen atom of amino group of aglycon, for example nucleosides, DNA, RNA. Now C glycosides, in these glycosides the sugar linked in the condensed form directly to the carbon atom of aglycon part, for example in the structure of aloin. Aloin is the chemical constituent of the drug aloe vera. Now the second basis of classification is classification of glycosides based on glycon part. Now in this, फर्स्ट इज द बेसिस ग्लूकोज. ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है, ठीक है, ग्लूकोज किस किस में है, लाइक द ड्रग सैनोसाइड, रैमनोज, फ्रैंगुलिन, डिजिटॉक्सोज, डिजॉक्सिन, ग्लूकोज एंड रैमनोज और ग्लूकोरैमनोसाइड, दैट इज ग्लूकोफ्रैंगुलिन. रैमनोज एंड ग्लूकोज, रैमनोग्लूकोसाइड, ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट इज र्यूटिन. Now the third basis of classification is classification of glycoside based on chemical group. Now इसमें आपका पहला है सेपोनिन्स. सेपोनिन्स बेसिकली सोप फॉर्मिंग ड्रग होती है, मतलब सोप फॉर्मेशन. ठीक है, मतलब ये फोम बनाती हैं. तो इसमें जो एग्लाइकॉन पार्ट है वो लिंक होगा आपका ट्रांस लिंक्ड स्टेरॉइड से इन द ड्रग जिनसेंग और डायस्कोरिया. सेकेंड इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड. दे आर बेसिकली पॉइजन्स फ्रॉम द ड्रग स्क्विल एंड डिजिटालिस. नाउ एंथ्रासीन डेरिवेटिव्स, ये क्या है, इसमें बेसिकली परगेटिव्स होते हैं. इसमें एग्जांपल हैं ड्रग के एलोवेरा, सेना एंड कैस्केरा. नेक्स्ट इज फ्लेवेनॉइडल, मेनली एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, दैट इज एग्जांपल इज गिंको एंड बकवीट. बकवीट इज कुट्टू, कुट्टू आपने सुना होगा, कुट्टू का आटा. नेक्स्ट इज कॉमरिन्स, दैट आर साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स, दीज आर रिसेप्टर्स. ठीक है, इसके एग्जांपल हैं आपके एमी एंड विसनेगा. नेक्स्ट फिनोलिक एनाल्जेसिक्स, इसमें आपका एग्जांपल है एस्पिरिन. नेक्स्ट साइनोजेनिक कंपाउंड्स, इसमें एग्जांपल है आपका बिटर आलमंड एंड वाइल्ड चेरी बार्क. ठीक है, नाउ कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड बेस्ड ऑन देयर थेराप्यूटिक इफेक्ट. मीन्स इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है ड्रग्स का, उसके बेस पे हमने कुछ ड्रग को क्लासीफाई करा है. ठीक है, उसमें आपका पहला है CHF, दैट इज कंजस्टिव हार्ट फेलियर एंड कार्डियक मसल स्टिमुलेटर्स. ये आपकी कैटेगरी है. इसके बेस पे हमने अपने ड्रग्स को क्लासीफाई करा है, लाइक डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड, कुआबेन, के स्ट्रोपेंथिन एंड स्किलेरिन AB. ठीक है, इनमें आपका है डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड में एग्जांपल हैं आपके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि एक्टिव हैं, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन फॉर ग्लोव लीव्स. ठीक है, फॉक्स ग्लोव लीव्स. नेक्स्ट क्वाबेन, स्ट्रोपेंथस ग्रेटर सीड्स, के स्ट्रोपेंथिन, दैट इज स्ट्रोपेंथस कॉम्बे सीड्स. ये सब इनसे मिलते हैं, ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज स्ट्रोपेंथिन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर ड्रग. Next, sclerin AB, which is isolated from red and white squill bulb. Squill is प्याज. ठीक है, रेड और वाइट प्याज. नेक्स्ट
लेक्सेटिव ग्रुप ऑफ ग्लाइकोसाइड इसमें आपके हैं सेनोसाइड, कैस्केरोसाइड, एलोइन एंड बाबालोइन। ये सब क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो हमें किस किस से मिलते हैं, इनके ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज लोकल इरिटेंट ग्रुप, that is sinigrin, that can be isolated from black mustard seeds or Brassica nigra. Next category is analgesic and antipyretics. Antipyretics क्या होते हैं, जो फीवर को रिड्यूस करते हैं, that is salicin salicylic acid. कौन सी ड्रग से मिलता है, willow and salix bark. Next is anti-inflammatory group, that is aloin for acne, glycyrrhizin for peptic ulcer. Now the topic is extraction of glycosides. वो तो आपका क्लासिफिकेशन था डिफरेंट मोड ऑफ बेसिस पे। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे ग्लाइकोसाइडिक ड्रग्स की। सबसे पहले ड्राइंग द प्लांट्स फ्रेश इन स्पेशल ओवन एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 30 मिनट्स। नाउ बॉइलिंग देम विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स फॉर अराउंड 20 मिनट्स। नेक्स्ट बॉइलिंग देम विद एसीटोन फॉर अबाउट 5 मिनट्स। ठीक है। नेक्स्ट इफ प्रेजेंट इन दिस प्लांट tannins or resins, we add lead acetate to precipitate them. अगर आपके ग्लाइकोसाइडिक ड्रग में tannins और resins के टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो उसमें हम lead acetate डाल के उनको precipitate आउट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज deactivation of enzymes like drying for 15 to 30 minutes at about 100 degree centigrade followed by slow drying at a low temperature. Now dipping the fresh material into boiling water or boiling alcohol, दोनों में से एक चीज़ लेंगे, for around 10 to 20 minutes. Now boiling the fresh plant material with the acetone. ये जो ऊपर आपको explain कर रहे थे steps, इन्हीं को explain किया गया है डिटेल में। Now carrying out the extraction at very low temperature. Next further freeze drying of the plant material before the process of extraction or lyophilization. Carrying the extraction in the presence of ammonium sulfate. Now the second basic step is maintenance of neutral conditions, that is neutral pH should be assured before and during extraction because acidity may result in hydrolysis. This is overcome by addition of calcium carbonate. Mild alkalinity may sometimes produce racemization also. ठीक है। Next defatting of fat rich organs before the process of extraction. हाई अमाउंट ऑफ लिपिड्स हिंडर ग्लाइकोसाइडिक एक्सट्रैक्शन। जो हमारे ड्रग होती है ग्लाइकोसाइडिक ड्रग या कोई भी ड्रग होती है उसमें हायर अमाउंट में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हिंडर करते हैं हमारी किसी भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, तो उनको हमें रिमूव करना होता है। तो उसे रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं डी फैटिंग। ठीक है। लिपिड्स आर फैट्स, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डी फैटिंग। डी फैटिंग इज यूजुअली कैरिड विद पेट्रोलियम ईथर। हम किसी भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से हम डीफैटिंग कर सकते हैं। डीफैटिंग हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पेट्रोलियम ईथर। नाउ सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टीशन किससे होगा, कौन कौन से हमने सॉल्वेंट्स लिए हैं वो इसमें एक्सप्लेन किया है, वाटर और हेक्सेन और क्लोरोफॉर्म टू रिमूव पिगमेंट्स इन द नॉन पोलर फेज। ठीक है। नेक्स्ट एड्जॉर्प्शन मेथड्स हम क्या क्या यूज़ करेंगे, एड्जॉर्बेंट सिलाइट यूज़ कर सकते हैं, फुलर्स अर्थ, ग्रेफाइट एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी स्टेप आएगा इसमें। नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन आउट इम्प्योरिटीज़, क्रोमेटोग्राफी करेंगे, इम्प्योरिटीज़ को प्रेसिपिटेट आउट करेंगे। नेक्स्ट द फाइनल स्टेज प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन फॉर द प्यूरिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट द प्रोसेस केमिकल आइडेंटिफिकेशन। इसमें आपके क्या हैं, केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं जो कि बेसिक टेस्ट है हमारे के ग्लाइकोसाइडिक ड्रग्स के। उसमें पहला है लिबमेंस टेस्ट, नेक्स्ट एंथ्राक्विनॉन्स, नेक्स्ट कोमेरेंस एंड नेक्स्ट सेपोनेंस। तो ग्लाइकोसाइड में हमारा है लिबमेंस टेस्ट। इसमें हमारा है 2 ml एक्सट्रैक्ट लेंगे, 2 ml क्लोरोफॉर्म लेंगे प्लस 2 ml एसिटिक एसिड लेंगे। तो वॉयलेट टू ब्लू कलर अगर आया या ग्रीन कलर आया तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये ग्लाइकोसाइडिक ड्रग है। नेक्स्ट इज एंथ्राक्विनॉन ड्रग, दैट इज बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, मतलब नेम टेस्ट है ये। इसमें आपका टेस्ट क्या है, 3 ml आपका एक्सट्रैक्ट लेंगे। एक्सट्रैक्ट मतलब कोई भी प्लांट का जो हम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्लस उसमें हम 3 ml बेंजीन डालेंगे प्लस 5 ml अमोनिया 10%। तो हमारा पिंक, वॉयलेट और रेड कलर आएगा अमोनियकल लेयर में। नेक्स्ट कोमेरिन के टेस्ट के लिए 2 ml हम एक्सट्रैक्ट लेंगे अपने प्लांट का, प्लस उसमें NaOH डालेंगे 3 ml 10% सॉल्यूशन, तो येलो कलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट इज सेपोनिस, दैट इज फोम टेस्ट। इसमें हम 5 ml एक्सट्रैक्ट प्लस 5 ml वाटर प्लस हीट करेंगे उसको। और दूसरा प्रोसेस है 5 ml एक्सट्रैक्ट प्लस ऑलिव ऑयल
few drops of olive oil, then it will produce emulsion. और हम जब 5 ml एक्सट्रैक्ट में 5 ml वाटर प्लस हीट करेंगे उसको, तो फ्रॉथ अपीयर होगा, ठीक है, झाग. नेक्स्ट, now this is all about introduction of glycoside. If you still have any doubt, you can ask in Google Classroom and in comment section too. Thank you.